So last time, if you remember, we were discussing feed-forward neural networks being used for predicting language. If you remember from last time, हमने बहुत डिटेल में जाकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाया था जिसको एक वर्ड इनपुट में देते थे और वो एक वर्ड प्रिडिक्ट करता था. रिमेंबर, उसके हमने थॉरली वेट लेवल पर जाकर, न्यूरॉन लेवल पर जाकर उसको पूरा समझ लिया था. एंड इट वाज अ वर्थवाइल एक्सरसाइज बिकॉज इट्स गोना बी यूज्ड थ्रू आउट. अच्छा, दूसरी चीज, उसकी बेस के ऊपर वी वेंट बैक एंड वी लुक्ड एट सीबो एंड स्किपग्राम वंस अगेन. अच्छा, अब जब हमने क्लास में सीबो बनाया था, वो सीबो उससे मुख्तलिफ था जो सीबो आपने अपने पेपर में पढ़ा था. The main difference, which one of you pointed out at that point, was that the SIBO that you did in your paper had a pooling layer. So that was where you were adding the counts of the words together into one vector before sending it to the intermediate hidden stage. एक बीच की layer और थी. And I said in the last class, we're not going to do it like that initially. इस चीज को अनपैक करने का हमें कभी मौका नहीं मिला. सो आज हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे इस बात को देखेंगे, इसकी दोनों डिजाइन्स को समझेंगे. व्हाट इफ वी हैव द पूलिंग लेयर, व्हाट इफ वी डोंट हैव द पूलिंग लेयर, एंड देन उसकी बेस पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बना लेंगे, समझ लेंगे, along with an analogy. So we'll have a mathematical concept and we'll have an analogy. ये एनालॉजी मैंने थ्रू आउट यूज करनी है. इट्स probably one of the most important analogies that explains to you what's going on under the hood. ये ठीक है, the math works out, but what's happening here? So that analogy is really, really important. So let's build that. So let me actually make that neural network, or a little bit of that neural network again. Lots of questions are coming in your direction. So pay attention, keep watching, and let's see कि हमने क्या करना है. So मैं उसी वाले neural network को दोबारा बनाने लगा हूँ, where we are giving in 4 words. We have an intermediate layer. All of these are going here. मैं आपसे dimensions पूछने वाला हूँ दोबारा से, सिर्फ just to bring your brain minds back, तो इसलिए खुद से निकाल लें. By the way, मैं जो circuit diagrams की एक terminology use कर रहा हूँ, I'm just using this line to show कि ये multiple lines हैं जो यहाँ से यहाँ जा रही हैं. Okay, and then from here you're predicting one word, and obviously after predicting the word you're comparing it with a y, the original word. This is your y hat. So you have a soft max somewhere in there. And let me, just to make it more concrete, let me just write it: the quick brown fox jumped. And let me assume this to be WT, this to be context 1, context 2, context 3, and context 4. So let's assume I'm giving the quick C1, C2, C3, and C4 here. ये सब यहाँ पर जा रही हैं जहाँ से एम्बेडिंग्स पुल आउट होती हैं, और उसके बाद इसकी बेस के ऊपर वर्ड प्रेडिक्ट हो रहा है, और वर्ड प्रेडिक्ट होने के बाद आप उसका एरर निकालते हैं, उसको बैक प्रोपेगेट करते हैं. ओके, वेरी क्विकली, if the vocabulary size is V, let's assume V to be 10,000, and if the embedding size that we're aiming for is 300, can you tell me the dimension of the input layer? Someone? पिछली दफा किया था, सिर्फ एक दफा दिमाग वापस लाने के लिए. What would be the dimensions of the input layer? Input layer. 40,000. So 40,000 into 1. Into 1 hot है ना ये सारे के सारे. So these are 1 hot vectors. So 1 hot vector of C1. So the का, quick का, brown का, the का, quick का, fox का और jumped का 1 hot vectors हैं. So 40,000. So 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 all into 1. ठीक है. Okay. This thing, the middle layer, इसकी dimensions मुझे कौन बताएगा? So 300. So 300 क्योंकि हमने साइज रखा है एम्बेडिंग का, और हर एक के अंदर जो कनेक्शंस लगे हुए हैं वो 40,000 लगे हुए हैं. सो हर न्यूरॉन के अंदर जो है वो सारी की सारी जगहों से इनपुट आ रही है. सो लिहाजा दिस इज 300 इंटू 40,000. ओके, एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर ये कितना होगा? सो बता दो ना डिमेंशंस. 10,000 इंटू 1 नहीं, ये तो मैच नहीं करेगा. ये 300 इंटू 10,000 है.
तो ये 10,000 into 1 नहीं हो सकता, या हो सकता है? Okay, what would this be? Would it be 10,000 into 1? Is he saying right? हर एक के अंदर 300 कनेक्शंस आ रहे हैं, नहीं नहीं तो गलत है ना, हाँ मसला है जी। या 300 into 10,000, each of those 10,000 need to take in 300 inputs ना, यहाँ से 300 inputs बाहर आउटपुट बाहर निकल रही हैं, so यहाँ this is 440k into 1, this is 300 into 40k, so therefore इसको यहाँ पर जब मैच करना है, हर एक के पास जो है, हर न्यूरॉन के पास 300 वेट्स हैं, so कितनी न्यूरॉन्स हैं? 10,000 न्यूरॉन्स into 300 weights, right? So you get your 10k into 300 into 40k, so आपके पास यहाँ पर वो सारी के सारे जो आउटपुट्स के अंदर है वो आ रहे हैं। सॉरी, या सो लेट्स सॉल्व दैट वन स्टेप एट अ टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पिछली क्लास के अंदर जो एक मसला हमने खाली छोड़ दिया था, वो मसला ये था, नाउ 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 यहाँ से जरा इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 10k हैं, हर वर्ड का इसके पास एक गुंजाइश है, ये वन हॉट वेक्टर है, ये भी 10k हैं, ये भी 10k हैं, ये भी 10k हैं। यहाँ आपने 40k कर दिए हैं, यानी हर एम्बेडिंग जो आपके पास 300, जो आपने 300 साइज की एम्बेडिंग बना रहे हैं, वो आप एम्बेडिंग्स कितने वर्ड्स की बना रहे हैं? 40,000 वर्ड्स की। डू यू हैव 40,000 vocabulary? व्हाट्स योर vocabulary? 10k। व्हाट डज दैट मीन? हर वेक्टर की आपके पास, सो हर वर्ड की, हर टोकन की आपके पास कितनी एम्बेडिंग्स बन रही? 4। So there is an embedding of the, and there is another embedding of the, and there is another embedding of the, and there is another embedding of the. You're essentially training 4 separate embeddings, potentially 4 separate embeddings for every vocabulary item. ये बात समझ में आ रही है? इसमें सब लोग मेरे साथ हो? ओके, ये तो मसला हो गया। जब इस पूरी ट्रेनिंग को कर लेंगे तो your trained embeddings have 4 instances for each token, each type. अब इसका क्या करें? अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग जो हमें पहली दफा मसला आया है, इसका एक बड़ा आसान सा हल है। वो आसान सा हल क्या है? व्हेन यू आर डन विद दिस, जस्ट ऐड देम अप। सो ऐड द एम्बेडिंग्स, जो 4 कॉपीज बन गई हैं एम्बेडिंग्स की, उनको आपस में ऐड कर दें। और ऑब्वियसली स्केल करना पड़ेगा, हो सकता है ओवरफ्लो होने के चांसेस हो, तो कोई स्केलिंग करनी पड़ेगी। सो बेसिकली यू आर सेइंग the key embedding as context 1, the key embedding plus the key embedding as context 2 plus the key embedding as context 3 plus the key embedding as context 4, सबको ऐड कर दिया आपने। चारों को ऐड कर देंगे, that will work। एक और चीज जो इस मौके पे की जा सकती है, although obviously not ideal, is just throw away 3 and keep 1। now which one we don't know, but that's also something that you can consider। अगर बहुत ही बड़ा डेटा सेट था, आपको पता है चारों इंस्टेंसेस बहुत अच्छी ट्रेन हो गई, you're also done with that। okay, there is another possibility, there is a third possibility। the third possibility is just take a max। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स किसी कॉन्टेक्स्ट पोजीशन में कभी आए ही ना हो। so when you're training, for example इस पोजीशन पर सारे possible वर्ड नहीं आए हैं, so there is a non overlapping set of words between these 4 positions। that means कि इन चारों positions की जो embeddings train होंगी, उसके अंदर भी ऐसा होगा कि एक के पास जीरो है और दूसरे के पास नॉन जीरो है। we want to keep the non zeros, so you can do a max pooling amongst them। this is what we are doing after the effect। सब कुछ हो चुका है, आफ्टरवर्ड्स अब आप इसको ठीक कर रहे हैं। एक तरीका ये इस मसले को सॉल्व करने का। ओके, दूसरा तरीका क्या है इस काम को करने का? जी सॉरी, साथ साथ नहीं चल रहे हो हैं, गौर नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, बट ओके। ये 40,000 बन कैसे गए? this is 1 to v, this is 1 to v, this is 1 to v, and this is 1 to v। so when we say here that we have 300 into 40,000, that means there are v into 4, 4 दफा यहाँ पर v पड़ा हुआ है। सो हर विकेबलरी आइटम की 4 4 इंस्टेंसेस हैं, सो हर चीज 4 4 दफा ट्रेन हो गई है। सो वी आर ट्राइंग टू मर्ज देम समहाउ। ठीक है, तो ये वाला तरीका is suboptimal। we don't do this because one, it wastes a lot of memory। आपको 4 गुना रखने की जरूरत ही नहीं थी, जबकि आप 4 गुना रखकर चल रहे हैं। how about we solve it in a slightly different way? we solve it by first adding them together। इन 4 वन हॉट वेक्टर्स को पहले ऐड कर दें,
एक लेयर बनाकर, सो वी कैन हैव अ लेयर हियर, तो भरा हुआ था पूरा ओके, सो वी कैन हैव अ लेयर हियर वेयर वी एसेंशियली सम, तो इस लेयर के ऊपर आकर यू आर क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स. व्हाट डज दैट मीन? पोजीशन बाय पोजीशन, वन पोजीशन वन पोजीशन वन पोजीशन वन पोजीशन ऐड हुई, टू पोजीशन टू पोजीशन टू पोजीशन टू पोजीशन ऐड हुई, सब ऐड होने के बाद वी साइज का एक वेक्टर बन गया. अब जब वी साइज का वेक्टर बन गया, तो तब यहां से आप बिल्कुल उसी तरह आगे प्रोसीड कर सकते हैं जैसे आप इससे पिछली एग्जांपल के अंदर कर रहे थे. ठीक है, इसमें एक डाउनस्ट्रीम मसला भी आना था, जब आप जो अभी इनके क्वेश्चन के साथ आ रहा था, जब यहाँ 40k का वेक्टर आप ले आए हैं, तो अब इस 40k के वेक्टर को यहाँ मैच करना भी तो आपको आगे पड़ेगा ना. सो देयरफॉर वो भी एक प्रॉब्लम था जिसको आपको आगे भी डील करना पड़ता, ये मसला खाली यहाँ खत्म ना होता. सो दैट्स व्हाई द पेपर दैट यू रेड वाज डूइंग अ पूलिंग. अच्छा, अभी ये मसला खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको आगे और चलाना है, लेकिन मैं पहले एक दो क्वेश्चंस दे देता हूँ सर. राइट, हम एक वर्ड में चार वर्ड भेज रहे हैं. बिल्कुल आएगी. यस, द की चार किस तरह बनेंगी, देखो. आप पूरे कॉर्पस के ऊपर से गुजर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पोजीशंस पर आ रहे हैं. एक मर्तबा आपके पास द आया यहाँ पर, आगे जाकर किसी जगह द आया यहाँ पर, इनफैक्ट स्लाइडिंग विंडो है तो ये एक ही दफा में चारों के ऊपर से गुजरेगा. फॉर एग्जांपल क्विक जो है फर्स्ट टाइम C2 है, अगली विंडो पोजीशन के लिए ये C1 होगा. जंप्ड पहली मर्तबा C4 है, अगली मर्तबा C3 होगा, अगली मर्तबा टारगेट होगा, अगली मर्तबा C2 होगा, अगली मर्तबा C1 होगा. So different words are occurring in different positions. When they occur in different positions, because we are having separate positions for them in this matrix, separate parts of that matrix get impacted when the back propagation tries to nudge the weights. एक दफा वो कॉन्टेक्स्ट वन के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन को चेंज करती है, एक दफा कॉन्टेक्स्ट टू को करती है, एक दफा कॉन्टेक्स्ट थ्री को करती है. यूं समझें बिल्कुल जैसे अगर मैं डेटाबेसेस की टर्म्स में कहूं, एक बंदा मिसाल के तौर पर नेशनल डेटाबेस के अंदर चार एंट्रीज में लिस्टेड है, कोई गलती हो गई है, उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकें. एक दफा वो आगा के नाम से लिस्टेड है, एक दफा अली के नाम से लिस्टेड है, एक दफा रजा के नाम से लिस्टेड है, एक दफा आई डोंट नो टीचर के नाम से लिस्टेड है. So now when the same benefits or problems come back, some of them go to A, some of them go to B, some of them go to C, and some of them go to D. So total जो है वो चार के क्रॉस डिवाइड हुआ हुआ है. Now you somehow you need to converge it into one. एक मिला, ये वो वाला मसला हो रहा है जैसे हम यहाँ देख रहे हैं. यहाँ भी एक दो क्वेश्चन थे. बाई डायरेक्शन इन व्हाट सेंस? बाई डायरेक्शनल है. सो बाई डायरेक्शनल इस सेंस में है कि ये कॉन्टेक्स्ट पूरे को लेता है, लेकिन डायरेक्शनैलिटी कोई नहीं है. सो ओके, विच इज अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर व्हाट आई एम अबाउट टू गो टू. ओके, सबसे पहले नए आर्किटेक्चर पे वापस आ जाए. नया आर्किटेक्चर आपके लिए इतना जाना पहचाना है कि आप इस पर पेपर पढ़ के पूरा रिव्यू लिख चुके हैं. सो अब वही मैं आर्किटेक्चर पे आ रहा हूँ जिसका आपने पेपर पढ़ा था. उसमें क्या था? यू कंबाइन देम, यू क्रिएट अ सीबो. दिस इज द कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स. नाउ यू यूज द बैग ऑफ वर्ड्स to predict the next word. Okay, we need to spend here a few minutes in order to understand what does this even mean. Okay, फर्ज करें इस बैग ऑफ वर्ड्स में आपने द की पोजीशन पर भी वन लगाया हुआ है, और क्विक की पोजीशन पर भी वन आ जाएगा, और ब्राउन यहाँ कहीं होगा, ब्राउन की पोजीशन पर भी वन आ जाएगा, और सॉरी ब्राउन नहीं ना, ब्राउन तो टारगेट वर्ड है. फॉक्स पे आएगा और जंप पे आएगा, तो एफ पहले आता है. फॉक्स पर आएगा और जंप पर आएगा. चार वंस हैं इसमें. इस पूरी एम्बेडिंग के नतीजे में यू आर प्रिडिक्टिंग अ वर्ड. व्हेन द एरर्स आर गोइंग टू कम बैक, दे गोना नज द वेट्स फॉर द क्विक, फॉक्स एंड जंप, चारों. बट व्हाट डज दिस एम्बेडिंग इवन मीन? दिस इज नॉट अ वन हॉट वेक्टर. लेट मी मेक दिस a little bit bigger. Let me take this problem to another level. Suppose I create
A continuous bag of words with the words W1, W2, W3, W3, W4, W5. मैं एक बैग ऑफ वर्ड्स बना रहा हूं जहां पर W1, W2 एक एक दफा है, W4, W5 एक एक दफा है और W3 दो दफा आया हुआ है. कोई ऐसा जुमला है जिसमें ये वर्ड दो दफा आया हुआ है. आई एम क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स फॉर दिस. ओके, व्हाट वुड इट लुक लाइक? W1 की पोजीशन पर 1 होगा, W2 की पोजीशन पर 1 होगा, W3 की पोजीशन पर 2 होगा, W4 की पोजीशन पर 1 होगा और W5 की पोजीशन पर 1 होगा. एवरीवन विद मी? ये थे वन हॉट वेक्टर्स. इसकी बेस के ऊपर इस वेक्टर की embedding train हुई, because this is pulling out at the same time it's pulling out the embeddings for W1, W2, W3 with a twice strength, W4 and W5. ये कोई एम्बेडिंग्स निकाल रहा है ना अगली वाली, इससे अगली लेयर के अंदर से वो जो आपकी लम्स की पूरी पीडीसी की ट्रेस होती हैं वो ट्रेस बाहर आती हैं. ये कह रहा है एक ट्रे निकालो W1 की, एक ट्रे निकालो W2 की, दो ट्रेस निकालो W3 की, यानी W3 की ट्रे दो दफा निकालो और उसके बाद W4 की और W5 की एक एक ट्रे निकालो. इन सारी ट्रेस को भेजो, अगला वर्ड प्रेडिक्ट करो, वापस आओ और इन सारी ट्रेस के वेट्स अपडेट करो इन द बैक प्रोपेगेशन. Agreed? Everyone with me? What does this tray represent? What does this whole thing represent? This is one problem जिसको हमें बार बार डील करना है और समझना है कि हो क्या रहा है. कि जब मैं कभी ये कहता हूं, मुझे ये बात समझ में आती है क्या है वो वन हॉट वेक्टर of word 1. Let's say the. I know this. I understand what this thing is. It has a 1 and all zeros. जब मैं इसकी embedding निकालता हूं, it's a 300 dimensional embedding. It's a 300 dimensional embedding for the word the, for the word W1. ये मुझे समझ में आता है. जब मैं इस पूरी चीज की embedding निकालता हूं, it's a 300 dimensional embedding. What does this represent? Is it W1? Is it W2? Is it W3? Is it W4? Is it W5? What is it, sir? Shabash. This thing, and now here, attentions to the max. ये वाली चीज मैंने बार बार यूज करनी है. This thing is a mixture of W1, W2, W3, W4 and W5, where W3 has twice strength. This mixture has W3 in twice strength. What does this mean? And here we begin with the analogy. I need colors. Lots of colors. Think of this thing as a glass of smoothie. Here, W5. The blue is not helping at all. This is blue. This is W4. Line लगा देता हूँ बीच में. Then suppose this is W3. Okay, the red is helping. This is my W3. This is my W2. And this is my W1. It's a smoothie with these 5 flavors where the flavor of W3 is of twice strength. When I send this smoothie to my neural network to predict a word, what does the prediction mean? The prediction means find a word which could be situated in the context of these words. उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर एक W1, एक W2, दो W3, एक W4 और एक W5 पड़ा हुआ है. इस कॉन्टेक्स्ट विंडो में जो टारगेट वर्ड फिट होता है उसको प्रेडिक्ट करो. दिस इज व्हाट वी सेइंग. यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं जी?
एक वक्त में कैसे आया है देखो, ये समझ में आ रहा है कि जब मैं ये 10,000 साइज की 10,000 की भेजता हूँ 300 × 10,000 को, तो मुझे 300 की एक चीज निकाल के बाहर दे देता है। ठीक है, वो 300 की चीज यूजुअली कैसे निकालता था, वन हॉट वेक्टर होता था ना, एक ट्रे बाहर निकालता था। अब उसी मैट्रिक्स में 4 जगह वंस लगे हुए हैं या 5 जगह वंस लगे हुए हैं। जब 5 जगह वंस लगे होंगे तो उन पांचों जगहों से जाकर निकालेगा और उनको ऐड करेगा। दैट्स अ सिंपल मैट्रिक्स मैथ। So the matrix is essentially it's adding together those 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectors and producing a sum. This is a sum of these, where this is 2 multiplied by the vector and these things are 1 multiplied by each vector and then summing up the vectors. So this vector has this thing in it. Okay, smoothie अब जब जहन में आ गई, अब जरा थोड़ा सा इसको इससे खेलना शुरू करते हैं। ओके, ये वाली गुफ्तगू बस इतनी ही थी। अब अगली गुफ्तगू शुरू करते हैं। सपोज इफ आई हैव अ सेंटेंस, द क्विक ब्राउन डैश, आई एम रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। दिस नेक्स्ट वर्ड, अगर मैं सही मानों में अपने ईमानदारी के साथ इसको प्रिडिक्ट करना चाहूं, सबसे ज्यादा इस पर इम्पैक्ट किस वर्ड का होना चाहिए इस प्रिडिक्शन पर, इन सब में से? ओके, व्हाई क्विक? A fox and foxes are quick, but this is also an adjective for fox, right? So, for example, there will be places when the last word will be most important. There will be places when this word will be most important. There will be places when other words are more important. But let's assume that the most recent context, अगर हम ये assume करें कि most of the language के लिए काम चल जाएगा कि most recent context word सबसे ज़्यादा meaning bearing है, उससे कम meaning bearing उससे पिछला context word है, उससे कम मीनिंग बेरिंग फर्ज करें उससे पिछला कॉन्टेक्स्ट वर्ड है। लेट्स डेवलप दिस मॉडल। इट्स नॉट एक्यूरेट, इट्स नॉट जनरलाइजेबल, इट वर्क्स इन मोस्ट केसेस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस चीज को इस स्मूदी आइडियोलॉजी में किसी तरह से शो करना चाहूं, हाउ कैन आई क्रिएट अ स्मूदी which represents this worldview? I would want to create a glass of the quick and brown where brown is pretty strong, quick is a little bit weaker than what it is originally, and the is even weaker. Okay, what do I mean by weaker and stronger? Okay, suppose I'm taking the original embeddings for brown and multiplying it by 1. I'm taking the original embeddings for quick and multiplying it with, let's say, 0.7. And I'm taking the original embeddings of the and multiplying it with, let's say, 0.3. I'm just pulling numbers out of here. अभी इसमें कोई method नहीं है, so don't ask me the question why 0.7. We're going to train this, as you very well know. In machine learning, ये काम हम खुद कभी भी नहीं करते. Okay, but the differential strengths, I have an ability to control now. So what am I asking now? Predict a word which occurs in a context of brown, lots of brown, a little bit of quick, and a little bit of the. ये बात समझ में आ रही? Okay. If it's a longer sentence, the quick brown fox jumped over the lazy dash, I can make a bigger smoothie with the entire context where the first word the has almost lost its taste completely. इतना पुराना हो चुका है कि अब हमने उसको बिल्कुल थोड़ा सा weight दिया है. Whereas the lazy has a very high weight. So it's a lazy flavored smoothie with a little bit of jumped over the and then even a smaller flavor of over and so on and so forth. ये बात समझ में आ रही है? This differential tasting smoothie is giving us a hint of how to represent a sequence. That's the point to take away. यहां से आगे के तकरीबन 6 lectures all the way to transformers are just different recipes of creating these smoothies. तो 6 लेक्चर सिर्फ स्मूदियां बनाने पर हैं और जो आखिरी 2 हैं इस ट्रांसफॉर्मर के
वहां पहुंचकर आप ये कहेंगे कि ये हमारे जहनों में 2017 में क्यों आया, why didn't this method occur to us in the first place, because वो हाइंडसाइट जो होती है ना वो बड़ी तेज होती है, माजी में बड़ा साफ साफ नजर आ रहा होता है। अब हमें पता है कि हमें शुरू ऐसे ही करना चाहिए था, दिस इज एसेंशियली, दिस स्मूदी इज द ट्रांसफॉर्मर अटेंशन, बट इफ ये वाली चीज हमें समझ आई बहुत बाद में, एंड वी गोना स्टार्ट आउट विद द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग दीज स्मूदीज, जिसका तरीका सिर्फ ये होगा कि इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दोस डिफरेंशियल वेट्स जो कि वो दे रहा हो इस सीक्वेंस के वर्ड्स को, ताकि वो स्मूदी को बना सके। ओके, नाउ वन लास्ट पॉइंट बिफोर आई बिगिन formally begin the RNNs. How can I take an embedding and, so let's say this is my 300 dimensional embedding, मैंने ये कहा कि मैं इसको डाइल्यूट कर सकता हूं by multiplying it with a number, right? So I multiply this with a scalar 0.7, मैंने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, right? इसमें तो मैं कोई मसला नहीं है। Do you see in your regular neural network, do you see any dilutions going on in your neural network? Any default dilutions which happen in the neural network? हमने पढ़ा हुआ है, हमें ये बात आती भी है बड़ी अच्छी तरह, इसका नाम भी हमने रखा था, उस डाइल्यूशन के नतीजे में जो कुछ होता है उसका नाम भी हमने रखा था। हमें बड़ा मसला पड़ा था इसके साथ, पिछली क्लास में ही पढ़ा था जब हम बोर्ड पे काम कर रहे थे। So there is a dilution that goes on, where does it happen? हाँ वो तो नतीजा था ना, होती कब है डाइल्यूशन? ठीक है, फॉरवर्ड में नहीं होती? तब भी होगी, और कब होगी? जब भी कभी कोई नंबर जो 0 से 1 के बीच में है किसी और नंबर जो 0 से 1 के बीच में है से मल्टीप्लाई होता है, इट रिजल्ट्स इनटू अ स्मॉलर नंबर जो 0 से 1 के बीच में है। So because we always scale these numbers to remain within 0 and 1, whenever we multiply with a weight, we dilute. हम हमेशा स्ट्रेंथ को कम कर रहे होते हैं whenever we are multiplying two numbers both of which are between 0 and 1. इस बात में कोई मसला तो नहीं है किसी को? Now, when I show you your next thing, जिसके लिए अब हम वापस स्लाइड्स की तरफ जाने वाले हैं, अब आपको उस सब कुछ में एक और लेवल पर मजा आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर एक मेंटल चेक पॉइंट बना लें, जस्ट लाइक द वीडियो गेम चेक पॉइंट। हम कहाँ तक पहुंचे थे? Let me summarize. We have discussed from the last lecture till now, how can we use feed-forward neural networks for predicting words? We said, okay, we know how the neuron works, we know how the neuron predicts, we know how embeddings work, we know how embeddings and neural networks work together, we know how neural networks, which are a discriminative logic, a discriminative form of machine learning, discriminative model, how can we use them for generation? And we do that by a little bit of cheating, where we essentially take the entire vocabulary and find out the probability of the occurrence of each word, and then उन scores को हम soft max करते हैं और जो highest आ रहा होता है उसे win करवा देते हैं, या winning का कोई और criteria निकाल देते हैं। This is how your neural networks can predict words and generate language, right? हमने ये सीखा। उसके बाद हमने कहा अच्छा मल्टीपल वर्ड से एक वर्ड भी प्रेडिक्ट हो सकता है, उसके कुछ मसले मसाइल भी हैं, इस वजह से कभी हमें उनको शॉर्टन करके कोई सीबो टाइप का काम करना पड़ता है। When we do SIBO, we essentially create an embedding which has a flavor of multiple words. We also saw how the flavors of words, if they are multiplied by numbers, we can amplify them or reduce them. We saw the formation of these smoothies. The smoothies of your SIBOs simply meant is context में कौन सा word आ सकता है. Then we said, can we be more intelligent about this? Can we apply it to a sequence? Essentially ये वाली स्मूदी क्या है, यही रही है, वो वर्ड प्रिडिक्ट करो जिसमें ब्राउन का बहुत असर हो, क्विक का थोड़ा कम हो और दा को बहुत कम हो। सीक्वेंस यहां भी नहीं है एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिट सीक्वेंस है। द इम्प्लिसिट सीक्वेंस है कि हमें मालूम है कि आखिरी वर्ड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है अगले वर्ड पर, उससे पिछले का उससे कम होता है, उससे पिछले का उससे कम होता है। सो दिस क्लस्टर is now matching our world view of a sequence. This is this is the basis of what we are about to study. So अब मैं लाइट्स कम कर देता हूँ, क्वेश्चंस अभी रोक कर रखो क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस खुद ही आंसर हो जाने हैं in what I'm about to discuss now. Okay. So, और अगेन यहाँ मेंटल चेक पॉइंट लगा के साइड पे कर दो क्योंकि बातें अब और होने लगी। ये ढेर सारे लिंक्स हैं, आई थिंक इतने ही और भी हैं हमारे पास जो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। These are the links to really good resources.
about the things जो हम study करने वाले हैं. So on the internet now there are amazing animations. So like most of you, you'll be different in terms of your how you pick up new ideas. So आप ऐसे कुछ intuitive learner होंगे, कुछ mathematical learners होंगे कि they really need to see how the math works out. Some of you need visuals, some of you need animation, some of you need philosophical basis of it, some of you need linguistic basis of it. As many people, as much diversity. इस सब कुछ के देने का मकसद ये है कि दिस हैज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इनटू थिंग्स. इसके अलावा कुछ नई चीजें भी आई हैं. वो मैंने अभी यहाँ लिंक्स में नहीं डाली हुई, मैं ज़बानी बोल देता हूँ. हलीमा में भी नोट कर लेंगी और इसको बाद में हम स्लाइड्स में डाल लेंगे. शायद मैंने इसका पहले जिक्र किया हो, पता नहीं आपके सामने किया था किसी और क्लास के सामने. सो रिसेंटली डीप लर्निंग डॉट ए आई एंड्रूइंग की ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव लॉन्च 2 न्यू शॉर्ट कोर्सेज, एक एक घंटे वाले जो उनके होते हैं, सारे फ्री. 2 उन्होंने नए किए हैं. एक जे एलमर के साथ बनाया उन्होंने नया कोर्स, विच इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ इट वर्क्स. और दूसरा उन्होंने जॉर्ज स्टामर के साथ बनाया है, स्टैटक्वेस्ट वाले बंदे के साथ, विच गोज इनटू द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. मैंने अभी तक वो खुद नहीं देखे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने उन दोनों हजरात ने जितना कुछ इससे पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में किया वो सारा कुछ बहुत डिटेल में देखा हुआ है, तो लिहाजा आई थिंक इट विल बी ऑसम. तो हाईली रिकमेंडेड. दे विल बी फ्री. उसके साथ कोडिंग भी हो रही होती है. अगर आपने डीप लर्निंग डॉट ए आई के कोई कोर्सेज किए हों तो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उसके साथ दूसरी साइड के ऊपर आप कोड लिख रहे होते हैं, उसी वक्त करके देख रहे होते हैं. सो हाईली रिकमेंडेड. यू गाइस, मोस्ट ऑफ यू आर सीरियस इन व्हाट यू डूइंग. तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जैसे जैसे हम उन टॉपिक्स पे पहुंचे, अभी ट्रांसफॉर्मर है हमसे कोई 2-3 लेक्चर्स दूर है, जब ट्रांसफॉर्मर शुरू करेंगे तो आप उसको भी साथ साथ कर लेंगे. दैट विल बी अनदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. हमने भी खैर आपसे कुछ असाइनमेंट्स करवानी है, तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये मेरे पिछले दफा के टीएस के रिकमेंडेशंस हैं. जो उनको लिंक्स पसंद आए, पिछली लिस्ट मेरी थी, ये वाली लिस्ट मेरी टीएस की है. सो दीज आर लाइक प्ले लिस्ट. सो जो उन्हें पसंद आती हैं और जो मुझे पसंद आती हैं. आंद्रे करपाती का दी unreasonable effectiveness of RNNs, and similarly Andre Karpathy का एक और भी है where he implements the entire transformer from scratch, a language model from scratch. 2-3 घंटे की वो वीडियो है. It's amazing. Like you implement everything. उस तरह की शायद कुछ हमने भी करवाना है ना, है हमारा इस दफा या नहीं? सेकंड प्रोजेक्ट. So है इस तरह की चीजें, हम भी आपसे इस तरह की चीजें करवा रहे होंगे. So you'll be implementing all of that. है anyhow. Okay, sequences are all around us. We studied from the very beginning that language is a sequence. These are various problems in machine learning which utilize sequences in various forms. The first one that you see here is a speech recognition problem, which is a sequence to sequence problem. How is this a sequence to sequence problem? You're given an audio file. The audio file is usually represented in the form of a big array, where every element of the array is a number, is a floating point number. Essentially हम ये देख रहे होते हैं कि जिस वक्त हमारा माइक्रोफोन, so let's assume this is the diaphragm of the, मैं बहुत पुराने जमाने का माइक्रोफोन बना रहा हूँ. This is not a condenser microphone, it's an inductance microphone. It's easy to understand. So think of a magnet here and an inductance coil here and a diaphragm here. When I speak, air disturbances की वजह से ये diaphragm move करेगी. जब ये डायफ्राम मूव करेगी तो ये कॉइल मूव करेगा, ये कॉइल मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेगा. राइट. वो जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेगा, मैं उसकी डिफरेंट चीजें, लेट्स से आई कैन मेजर द वोल्टेज और आई कैन जस्ट मेजर द करंट. डिफरेंट अंदाज से इसको किया जा सकता है. आई कैन मेजर दोज थिंग्स टू रिकॉर्ड कि इस वक्त वोल्टेज कितना है इसमें. ओके. आई कैन डू एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑन दैट एंड आई कैन स्टोर दैट. सो आई एम गोना गेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. तो 0.0001 जब ये एक पोजीशन पे था, 0.0002 जब ये थोड़ी पोजीशन आगे पीछे हुई, 0.0003 जब और दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, and so on and so forth. Okay, this array is then chunked. So we take it and we say, okay, let's chunk it over 300 milliseconds. हर 300 millisecond के chunk को अलग कर लेते हैं. We get a sequence of audio chunks. This sequence of audio chunks has to be mapped onto a text string. For example, इसमें बोला गया था the quick brown fox jumped over the lazy dog. This is, in machine learning, this is a sequence to sequence problem. A model that takes in a sequence of audio samples and outputs a sequence of text. Okay. Here's another one, music generation. One way to create music generation or music generation systems is this is a genre-based music generation system. You give it a number and it produces music. Or it could be just produce music, which means there is no input and it just produces the music that it prefers to. It just produces anything, a sequence of music. So nothing to sequence,
sequence to sequence, sentiment classification. You have a text string, you want to output the sentiment of the text string. It is a sequence to a fixed size output mapping problem. So it's a many to one problem. Now, if I start saying all of this in set terminology, many to many, nothing to many, yeah, one to many. So many to one, DNA sequence analysis, many to many, machine translation, many to many, वीडियो एक्टिविटी डिटेक्शन मैनी टू वन, अगर कैप्शन सिंगल हो सकता है, अगर एक से ज्यादा हो सकते हैं तो मैनी टू मैनी. नेम एंटिटी रिकग्निशन, यानी किसी टेक्स्ट के अंदर से आपने नेम्स आइडेंटिफाई करने, तो अगेन सीक्वेंस टू सीक्वेंस, मैनी टू मैनी. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? By the time we're done with the next 5 or 6 lectures, we'll have a pretty decent way of dealing with any of these problems, because at their core, from a machine learning perspective, they're all the same. They're different बेस्ड ऑन जिस तरह से उन्हें पहले प्री फिल्टर करके लाना है या आउटपुट जिस फॉर्म में देनी है. दे आर नॉट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ के बीच में जो मशीन लर्निंग की मशीन चलनी है वो एक ही अंदाज से चलनी है. सो विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ देम इन पैरेलल. ओके, सो ये उन्हीं को कुछ मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है. सो फॉर एग्जांपल एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. टेक्स इन एन इनपुट सम एक्स, हो सकता है ये एक से ज्यादा हो, और उसके बाद ये एक आउटपुट दे रहा है यस नो, कोई बाइनरी सीक्वेंस दे रहा है, मरीज बीमार है या नहीं है, हार्ट डिजीज है या नहीं है. Sentiment classification, you give it many words, and then as an output, it gives you a single output, the sentiment, negative, positive, neutral. Image captioning, you give it an image. The image could be a single thing, the image could be multiple things. Again, it could be many to many, it could be one to many. जो चीज आप अपने सामने देख रहे हैं ना, essentially this is the definition of the architecture of a machine learning model. तो जब भी कभी हमने एक मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है यूजिंग दीज डीप न्यूरल नेटवर्क्स, फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू अ फेज वेयर वी डिजाइन इट. कि अच्छा, जो मेरी इनपुट होगी वो सिंगल एलिमेंट है, वो एक सीक्वेंस है, वो एक अनरिलेटेड सीक्वेंस है, वो डीपली रिलेटेड सीक्वेंस है, वो क्या चीज है. जब ये डिफाइन हो जाता है तो देन वी डिसाइड कि अच्छा अब इसके आगे हमारा मॉडल कौन सा लगना है. तो हम बेसिकली उस स्टेज के ऊपर ये वाली डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, सो हियर वही एग्जांपल्स को मैंने बहुत सारा इकट्ठा भी लिख दिया है. यू कैन जस्ट सी ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स किस किस किस्म की हैं. यहां पर हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग किस्म का और प्रॉब्लम भी आता है. When I say the quick brown fox, translate this to Urdu. इतना ही ट्रांसलेट करना है, आगे नहीं, इतना ही. यस, द क्विक ब्राउन फॉक्स क्या कहेंगे उर्दू में? तेज खाकी, ब्राउन भूरी, तेज भूरी लोमड़ी. राइट, ओके. सो दो एडजेक्टिव हैं और एक खुद नाउन है जिसकी बात हो रही है. द एक आर्टिकल है जिसकी हमें उर्दू में जरूरत नहीं. सो अगर किसी खास लोमड़ी की बात हो रही होती तो हम फिर कहते वो तेज खाकी लोमड़ी या वो तेज भूरी लोमड़ी. अच्छा, फर्ज करें अगर मैं इसको बनाऊं, बाय द वे डिपेंडिंग ऑन कि आप लोमड़ी को एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, आप तेज कहेंगे या तर्रार कहेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. या चालाक कहेंगे. तो तेज का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाकई तेज, तेज भागने वाली. ओके, तेज भूरी लोमड़ी. दिस has 4 words, this has 3. So the translation problems have a secondary problem. Many to many problems have a secondary dimension, that the many to many does not mean a one to one relationship between input and output. तो और दूसरी चीज जो तकरीबन हमेशा इस किस्म की प्रॉब्लम्स में हो जाती है वो ये है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं द अपने मॉडल को दूं और एक्सपेक्ट करूं कि वो उसका उर्दू वेरिएंट निकाले, फिर क्विक दूं और वो उर्दू वेरिएंट निकाले, फिर ब्राउन दूं और उर्दू वेरिएंट निकाले, और फॉक्स दूं और वो उसका उर्दू वेरिएंट निकाले. वरना क्या बनेगा? वो तेज भूरी लोमड़ी. ये तो ठीक बन गया इस वाले केस में. इट्स ट्रू. आई वॉज ईटिंग, मैं था खाना खा रहा. So the word order across languages
across many types of languages will never be the same. Therefore वर्ड्स अपना ऑर्डर चेंज करेंगे, तो हो सकता है जो वर्ड यहाँ पे इनपुट हुआ है उसकी जो वर्ड आना है दूसरी टारगेट लैंग्वेज में वो यहाँ जाकर आ रहा हो, ठीक है। सो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सब मसले के अंदर जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट वर्ड मॉडल लैंग्वेज मॉडल्स आर। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सी चीजें हम कर चुके हैं, मैं जल्दी से वो स्लाइड्स गुजार देता हूँ। ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, तो इसकी अब आपको जरूरत नहीं है, ये मैं बोर्ड पे पढ़ा चुका हूँ, ये सब बोर्ड पर हो चुका है। या ये सब बोर्ड पर हो चुका है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, यस, यहाँ से अब नई चीज है। ओके, so now we want to come up with a way where we can essentially have a neural network, give it an input which is fixed size, maybe produce an output, and keep doing that in order to encode an entire sequence. Okay, आज की क्लास में जाने से पहले सिर्फ हमने एक चीज समझनी है। You remember this diagram from last time? We said कि hidden layer जहां पर आपके embeddings लगी हुई हैं, we can take the hidden layer, we can multiply it with a weight and take it back. If we do that, essentially we are taking this H, we are diluting it. So these are the embeddings from the last time. Dilute the embeddings and put them back into the smoothie. So now, सिर्फ इतनी चीज समझ लें, how is this going to work? I'm going to take the, I'm going to add it here. It's going to produce a hidden state. पिछली हिडन स्टेट कोई थी नहीं, ये फर्स्ट वर्ड है, लिहाजा यहाँ से कोई जीरो साथ आकर इसमें ऐड होगा और एक स्मूदी बन जाएगी जिसका टोटल फ्लेवर दा जैसा होगा, ठीक है। इसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस किया, राइट नाउ आई डोंट केयर। ओके, नाउ उसके बाद वर्ड आया क्विक, हिडन स्टेट में पड़ा हुआ था दा मल्टीप्लाई होके आ रहा है एक वेट से, यानी डाइल्यूट होकर। तो जब क्विक प्रोसेस हो रहा है तो इस ग्लास के अंदर ढेर सारा क्विक है और थोड़ा सा दा है, क्योंकि दा डाइल्यूट होके वापस आ रहा है। व्हेन आई गो टू ब्राउन, ब्राउन का फ्लेवर सबसे हाईएस्ट होगा बिकॉज वो कोई मल्टीप्लिकेशन के बगैर आ रहा है, इट्स द प्योर एम्बेडिंग्स ऑफ ब्राउन। क्विक और दा जो पीछे पड़े हुए थे, पिछली वाली एम्बेडिंग में मौजूद थे एक ही ग्लास के अंदर, वो पूरा ग्लास वेट से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, दोनों के वेट्स कम हो गए। सो लिहाजा नाउ इट हैज अ लॉट ऑफ ब्राउन एंड अ लिटिल बिट ऑफ दा इन क्विक, वे सबसे वीकेस्ट फ्लेवर दा का है। एंड देन व्हेन वी गेट टू फॉक्स, इस स्मूदी के अंदर फॉक्स फ्लेवर है, थोड़ा सा ब्राउन फ्लेवर है, थोड़ा सा क्विक फ्लेवर है और बहुत ही थोड़ा दा फ्लेवर है। दिस मॉडल has actually allowed us to implement what we were envisioning after looking at the word2vec. That's why a recurrent neural network is able to produce a single vector which can capture the entire sequence of inputs जो उसको दिया हुआ होता है। At this stage, अगर मैं जिस मॉडल को ये सब कुछ मिल रहा है on time step 4, so let me just say word t is equal to 1, 2, 3, 4. At time step 4, it is a smoothie which has these 4 flavors. If I predict the next word, it's going to be the word after this. So let's say jumped. अगर उसने सही predict कर दिया, तो ये इस पूरे सीक्वेंस के बेस के ऊपर मुझे वर्ड प्रेडिक्ट करके दे रहा है। Okay, now let's very quickly before you go, let's see the math of it. So this is how a simple feed-forward neural network works. We can create these multiple neural networks which are all feed-forward. So x0 to y0, x1 to y1, x2 to y2, where the functions of the neural networks are simply the output of the neural network is a function of the input of the neural network, just like a combinational circuit. We can tweak this a bit and we can combine them. So we can say, अब इस चीज को ना हम दो अंदाज से सोचा करते हैं, इंप्लीमेंट तो एक ही तरह करते हैं, सोचते दो अंदाज से। फर्ज करो मेरे पास 3 न्यूरल नेटवर्क होते, एक न्यूरल नेटवर्क में मैं द डालता, वो कुछ आउटपुट करता और हिडन स्टेट को वेट से मल्टीप्लाई करके एक और न्यूरल नेटवर्क को दे देता जिसमें मैं क्विक डालता, और यहाँ द क्विक की स्मूदी बन जाती, और द क्विक की स्मूदी एक वेट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आती जहां मैं फॉक्स डालता या ब्राउन डालता, जो भी तीसरा वर्ड था, और वो द क्विक ब्राउन की स्मूदी बन जाती। दिस इज हाउ वी राइट अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इन एन अनरोल्ड मैनर।
इसको अनरोल किया हुआ है। असल में ये अनरोल नहीं होता, असल में ये वही न्यूरल नेटवर्क है, सिर्फ इसे खोल के लिखते इस अंदाज से हैं, जरा समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है? ओके, बट दिस न्यूरल नेटवर्क, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट द y hat is a function of xt, the input, and ht minus 1, which is the hidden layer, the embedding layer from the previous timestamp. Okay, so now that we know this, by the way, this recurrent neural networks, कितना बुरा हो गया टाइम? Okay, just give me 3 more minutes. मैं 20 पे आपको छोड़ दूंगा. Okay, this recurrent neural network also has some basis in the way our brain works. So हम अपनी जिंदगी के अंदर दो तरह के पैटर्न से डील कर रहे होते हैं. एक हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, पुरानी बातें, और एक हमारी बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो रोजमर्रा के बारे में होती है. द थिंग्स दैट अलाउ अस टू find patterns, understand language, generate language, think in short term, ये सारी चीजें. ये करने के लिए the part of our brain that we use is the temporal lobe. So this is the part of the brain जो कि short term relationships को और temporary information को अपने पास रखता है. The recurrent neural network essentially allows us just to try to replicate that type of thinking, the short term क्विक थिंकिंग. इसकी लॉन्ग टर्म एबिलिटीज नहीं होती जो हम आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करेंगे. So this is your standard diagram of a recurrent neural network. This is the input, this is the previous time step की जो आपके पास hidden state आ रही है, and this is the output. ठीक है, this is the function. अब हमें करना क्या है अगली क्लास के अंदर? अगली क्लास में RNNs हमने खत्म करना है इंशाल्लाह. RNNs के अंदर सिर्फ दो तीन छोटी छोटी चीजें होंगी. सबसे पहली चीज, हम इस RNN को पकड़ेंगे और इसकी मदद से वो सारे आर्किटेक्चर्स बना लेंगे जो भी हमने देखे हैं. One to many, many to one, many to many, and then many to many where the size of the input and the output are different. That particular architecture जो आखिरी काम करेगा would be really really fun for us. उसे हमने साथ लेकर चलना है. There is a special name for it. We call it the encoder decoder architecture. Essentially, okay, क्योंकि अब आप वो दूसरी जबान सीख चुके हैं, अभी हम ये पढ़ने से बहुत दूर हैं. Let me say this in a different way, and in a second you'll see what that neural network will be doing. The encoder is what creates smoothies. The decoder is what takes in a smoothie and produces an output. That's an encoder decoder architecture. The encoder का काम सिर्फ इतना है, वर्ड्स को पकड़ो, उनकी डिफरेंशियल वेटिंग करते हुए एक स्मूदी बना दो जहां आखिरी वर्ड का सबसे ज्यादा वेट और पिछले वर्ड का कम वेट है. इस पूरी स्मूदी को एक डब्बे में डालो और किसी और को दे दो. वो इस डब्बे को पकड़ के कहेगा, अच्छा इनपुट वर्ड ये था, आई नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग दिस सेंटेंस in a different language, let's say, if I'm doing a translation. So say this in French. And now it will start predicting one word at a time based on that, using that input smoothie. This is how the most sophisticated of the recurrent neural networks work. जब हम ये कर लेंगे, ये तकरीबन हमें इंशाल्लाह 15-20 मिनट लगेंगे अगली क्लास में, बिकॉज सारा बैकग्राउंड हम कर चुके हैं. देन वी नीड टू डू वन रियली इंपॉर्टेंट टास्क. उसके लिए घर का एक काम दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को. मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया था एक मरतबा पूरा बैक प्रोपिगेशन पिछली क्लास के अंदर, राइट? अगर किसी का इतना सा भी कच्चा है तो अगली क्लास में रिवाइज करके आना, बिकॉज विल बी डीलिंग विद वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ बैक प्रोपिगेशन विच इज कॉल्ड बैक प्रोपिगेशन थ्रू टाइम. तो दिस जो आपके recurrent neural network का back propagation है, this is the only time when machine learning people feel like we're physicists. We're saying like back propagation through time, it's almost like time travel. So we'll be doing it in the next class. Once we're done with that, we'll have firm basis to start attacking LSTMs, inshallah. Thank you.